ગુજરાત સરકાર, કેન્દ્ર સરકારે આવા આફતના સમયમાં ભગવાનની કૃપાબલ શક્તિથી જ્યાં પર્વત ઉચક્યો છે, આખા રાષ્ટ્રને કોરોનાથી મુક્ત કરવા માટેનો, સુરક્ષા આપવાનો, સુવિધા આપવાનો, બસ એ પર્વતમાં વિવાયો એક નાની લાકડીનો ટેકો બનીને સરકાર સાથે જોડાઈ રહી છે. અને આ રીતે દરેક વ્યક્તિઓ, સંસ્થાઓ અગર આગળ આવીને આ સહયોગ આપતી થઈ જાય તો મને નિશ્ચિત વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા છે આવનાર સમયમાં આ કોરોનાના આ યુદ્ધમાં આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. વલ્લભ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિવાહોના માધ્યમથી વડોદરામાં આ 4 પ્લાન્ટ્સનું આજે ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા. આ 4 પ્લાન્ટોના માધ્યમથી લગભગ આશરે 8 થી 10 ટન ઓક્સિજન પર કલાક ઉત્પાદિત થશે. અનેક જાનોને બચાવવામાં કદાચ આપણે નિમિત્ત બની શકીશું, પણ અહીંયા અમારે અટકવું નથી, હજી આગળ વધવું છે. અને આ ત્યારે જ શક્ય બની શકે જ્યારે હજારો લાખો કાર્યકર્તાઓનો સહયોગ હોય, સમર્થન હોય, દાતાઓનો વિશ્વાસ વિવાયો સંસ્થા પર હોય. આજે આપ સર્વને કહેતા અમને આનંદ થાય છે, આખા ભારતમાં વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન VYO એ પહેલી NGO છે જે કોઈ એક રાજ્યમાં 29 પ્લાન્ટ નાખવા જઈ રહી છે. વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા 4 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ વડોદરામાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે. એનું લોકાર્પણ કરવા બદલ વલ્લભાચાર્ય શ્રી વજરાજકુમારજી મહોદય અને એમની VYOની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું. આપણી સંસ્થા VYO આ કામ કરી રહી છે અને ઉદાહરણ દેશને પૂરું પાડ્યું છે, એ પણ આપણા બધા માટેની ખૂબ આનંદ અને ધન્યતાની વાત છે. VYO પૂજ્ય શ્રી વજરાજકુમારજીના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ નીચે ખૂબ સારા કામો ઘણા વખતથી કરતી આવી છે, પરંતુ રાઈટ ટાઈમ ફોર રાઈટ જોબ, યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામ અને જરા પણ રાહ જોયા વગર આજે 1.25 કરોડના ખર્ચે 4 પ્લાન્ટ આજે વડોદરામાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે. હું વાયુના કાર્યક્રમમાં બરોડા ગયો હતો. આદરણીય મહારાજ એમણે એ જ દિવસે કોન્સન્ટ્રેટર અલગ અલગ જગ્યાએ આપવા માટેની જાહેરાત કરી હતી ને આપ્યા હતા. અને એમણે એ સેવા કાર્ય તે જ વખત એમણે સંકલ્પ પણ કર્યો હતો કે અમે અલગ અલગ જગ્યાએ ઓક્સિજનના પ્લાન્ટ પણ આપીશું, અને એ કાર્ય એમણે સતત ચાલુ રાખ્યું છે. એટલા માટે હું એમનો ખરેખર ખૂબ દિલથી આભાર પણ માનું છું. મને વિશ્વાસ છે કે જે વ્રજેશજી મહારાજ જે રીતે
એમણે જે સંકલ્પ કર્યો છે એ સંકલ્પની સાથે જે આગળ પણ વધી રહ્યા છે અને એને અમલમાં પણ મૂકી રહ્યા છે. એમના સમર્થકો, એમના ભક્તજનો, એમના ફોલોઅર્સ એમનો જે પડ્યો બોલ ઝીલે છે. બરોડામાં વાયવો જેવી સંસ્થાઓ એ રીતે કાર્યરત છે એનાથી બાકીની સંસ્થાઓને પણ પ્રેરણા મળે છે. અમે પણ આપની સાથે જ ખભે મિલાવીને આ કામમાં જોડાયેલા છે. જ્યાં પણ અમારી જરૂર હોય ત્યાં અમે કહેજો, અમે આપની સાથે છીએ. મહારાજશ્રીની સમગ્ર ટીમ અને પૂજ્ય મહારાજ શ્રીને અભિનંદન કે આપ આવા કામ સમય સમયે કરતા રહે. सबसे पहले तो मैं नमन होकर आदरणीय पूज्य श्री वज्रराज कुमार जी के, महाराज जी के, उनको वंदन करता हूं. हम जानते हैं कि यह पहला संगठन है जो पुष्टि वैष्णव संप्रदाय, जिसके नेटवर्क में 15 देशों में और लगभग 46 सिटीज में, शहरों में इसका काम व्याप्त है और हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग इस संगठन के साथ जुड़ करके समाज की सेवा में और बाकी सारे कार्यक्रम में लगे हैं. ये बहुत ही अभिनंदनीय है, ये बहुत ही सराहनीय है. हम जानते हैं कि ब्रजराज कुमार जी महाराज महर्षि जी जो पहले हिंदू आचार्य हैं, जिन्होंने सभी को इंस्पायर किया कि वह समाज के लिए आगे आएं और ऐसे विपत्ति काल में, ऐसे आपदा के समय वो अकेले थे जिन्होंने इस बात के लिए लोगों को आह्वान किया कि आप आकर के ऑक्सीजन प्लांट या मदद करने का प्रयास करें. और उन्होंने खुद भी अपने संगठन की तरफ से, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, कि 29 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का निश्चय किया है और आज उस कड़ी में 9 प्लांट जुड़ गए हैं. इसके लिए मैं संगठन का धन्यवादी हूँ और इस प्रयास को बधाई देता हूँ जो उनके प्रयास से ये हुआ है. आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ये छोटा सा प्रयास है. मैं इसको छोटा प्रयास नहीं मानता, मैं इसको बहुत बड़ा प्रयास मानता हूँ. क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन इसकी पहल करता है. आपने इसमें पहल की, समाज को जोड़ा, समाज को आगे लेकर के आए और समाज के माध्यम से, VYO के माध्यम से आपने विदेश के हमारे लोग जो भारतीय मूल के हैं, जिनके मन में चिंता होती है कि भारत के लिए कार्य किया जाए, ऐसे लोगों को प्रेरित करके इस बड़े संकल्प को पूरा करना निश्चित किया है. इसके लिए पुनः मैं बधाई भी देता हूं और मैं इसे एक बहुत बड़ा काम भी मानता हूं और मार्गदर्शन भी मानता हूं जिसको आपने किया. अप्रैल को के बाद संत महात्माओं के साथ एक उनके सानिध्य में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला. उस दिन आदरणीय श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज ने जो चर्चा की थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था और उन्होंने बहुमूल्य सुझाव उस कार्यक्रम में प्रदान किए थे और उसका परिणाम ये रहा कि जितना भी संत समाज उस दिन कार्यक्रम में उपस्थित था सब बहुत प्रेरित हुआ और सभी ने अपने अपने संस्थानों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान किया. आज
मैं आदरणीय श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज के इस युवा आचार्य को देखता हूं और इनकी भावनाओं को देखता हूं तो मुझे इन पे गर्व होता है, वैष्णव संप्रदाय पे गर्व होता है कि जो मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कितनी बड़ी सोच रखते हैं। यही हमारी संस्कृति का मूल आधार रहा और मुझे आज अपार प्रसन्नता है कि युवा आचार्य श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज ने इस कष्ट की घड़ी में इस पूरे गुजरात के लोगों की सेवा में जितना बढ़ चढ़ करके योगदान किया है वो निस्संदेह बहुत सराहनीय है, बहुत बड़ा प्रेरणादायी है। एक समय पर सही उचित कदम महाराज श्री ने उठाया जब पूरा देश और समाज ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहा था। उन दिनों आप जैसे भलों लोगों के सहयोग से, आप लोगों के धन को सात्विक धन बनाते हुए महाराज श्री ने 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ऐसे संतों पे मैं गर्व करता हूँ कि जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इतना बड़ा एक काम करने के लिए आगे आते हैं, वो बड़ी भारी समाज को प्रेरणा देते हैं। विगत लगभग 1-1.25 साल से पूरी दुनिया और देश कोरोना महामारी के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है और एक प्रकार से मानो कुदरत भारत की विशेष रूप में परीक्षा ले रही हो, इस प्रकार से देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर साइक्लोन भी आए और कई प्रकार के संघर्ष इसी समय में आए। मगर कहते हैं कि संघर्ष के समय ही जनता और नेतृत्व और समाज सेवी संगठनों की परीक्षा होती। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वायरस ने अपना स्वरूप बदलकर बहुत तेजी से फैलना शुरू किया, न केवल तेजी से फैलना शुरू किया, इसके साथ साथ मानव की सेहत पर भी बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाने की भी इस बार उसका लक्षण देखा गया। फिर भी इसको बहुत कम समय के अंदर नियंत्रित कर ढलान की ओर ले जाने में हम सबको एक सामूहिक सफलता मिली है। और इस सफलता का कारण के मूल में जाते हैं तो दुनिया भर में महामारी के खिलाफ सरकारें लड़ती थी। यहाँ सरकार तो लड़ती ही थी, मगर सरकार के साथ 135 करोड़ लोग जो भारत के नागरिक हैं वो भी लड़ते। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्वप्रथम एनजीओ होगा जिसने गुजरात राज्य में 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और ये सभी ऑक्सीजन प्लांट हमारे पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी, CR पाटिल जी, विजय कुमार जी, विजय भाई सबके हाथों से लगा
और इसमें भारी संख्या में लोगों की मदद, 15 देशों के 46 शहरों में ये संगठन आज एक मूर्त रूप ले चुका है और 5 करोड़ वैष्णवों को संगठित करने का एक प्रयास, और ये संगठित शक्ति समाज सेवा में लगी, इस संगठित शक्ति धर्म प्रसार में लगी, इस संगठित शक्ति सद्विचार और अच्छे संस्कारों के साथ परिवारों को प्रेरित करे। इस प्रकार के जो आपके सारे कार्यक्रम हैं उसको पूरा देश उसकी प्रशंसा भी करता है, मैं भी आज उसकी प्रशंसा करता हूँ। आज मैं फिर से एक बार वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने 29 प्लांट लगाकर गुजरात की ऑक्सीजन की कमी को परमानेंटली मदद करने का, ये प्लांट जो लगे हैं कल को शायद महामारी न हो तब भी ये प्लांट काम करते रहेंगे और हमेशा दर्दियों की सेवा करते रहेंगे। तो मैं गुजरात के सभी लोगों की ओर से और भारत सरकार की ओर से पूज्य ब्रजराज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित देने के लिए आपने निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।